یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے ادارے کے، یہ آپ میرے ساتھ رہو تاکہ میں اپنی پڑھائی بھی مکمل کر ہاں سکوں ہاں ساتھ ساتھ، کیوں اور نہیں۔ پھر دیکھو بیٹا، اب تم نے اب اپنی نسل کو بھی آگے بڑھانا ہے، سب چیزیں دیکھنی ہے، تم پہ بہت ذمہ داریاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر بات سے بے فکر ہو جاؤ، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ جو تم کہو گے ویسا ہی ہوگا پھر اس گھر میں، کیونکہ تم گھر کے بڑے ہو اب، صحیح ہے، اور اس کرسی کے مالک ہو، ٹھیک ہے نا؟ رہ گئی بہن کی بات، تو بہن بھی تمہاری ہے، تمہاری سپورٹ میں انشاءاللہ میں بھی ہوں، تو تم نے کسی کی بات نہیں آنا میرا بیٹا، کسی کو بھی مطلب ہاں سمجھ رہے ہو نا، اہمیت نہیں دینی، اوکے؟ تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، نہیں آپ بے فکر رہیں، صحیح ہے نا؟ ہاں آپ کا بالکل، حکم مجھے پتہ میری ہے، سر آنکھوں پہ۔ ہاں مجھے پتا، پورا بیٹا پورا بھروسہ ہے تم پہ کہ تم سنبھال لو گے، تم ہی میری آخری امید ہو، اور مجھے کسی پر بھی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی کام شام ہے وہ سب تم پہ ہی ہے، بس یہ کہ جو کل کو تمہاری شادی ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں یہ بالکل بالکل بیٹا، جو صحیح کہہ رہی ہو، انشاءاللہ، ڈاکیومنٹس وغیرہ سارے جو ہے نا، ہاں اگر وہ ہو جائے گا بیٹا، سب کچھ ہو جائے گا، ابھی تم چھوٹے ہو، اس یہ بھی میں ہاں چاہتا ہوں کہ اس جو وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ میں ہاں دیکھ لوں۔ ہاں بالکل بالکل بیٹا، ابھی تم اپنے حساب سے یہ سب دیکھ لو، جس طرح ہوگا، باقی تمہارے سب ذمہ داریاں تم پہ ہی آنی ٹھیک ہے، ہے ٹھیک ہے، اب بے یہ ذمہ فکر داریاں نبھاؤ بے تم، فکر، جی جی ٹھیک ہے نا؟ ماحول کو سمجھ لو کیسے ہے کیا ہے، جی جی تو اس وجہ سے میں تمہارے نام جی، آپ بے فکر رہیں، ابھی وہ ڈاکومنٹس نہیں کر رہی، کیونکہ بس میں تو ویٹ کر رہا ہوں اسی کا۔ ہاں ہم کیونکہ میڈیا والوں کی بھی تمہیں پتہ ہے ہم پہ نظر ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ساری معاملات، اچھا بس وہ یہ تھا کہ کوئی چھوٹی جائیداد تو ہے نہیں، اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہیں ہم، اس ہاں وجہ، لازمی بات ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو ہاں تو بس یہ کہ چلو، سانگڑ ہاں ہاں جو اچھی بات ہے کہ تمہاری سمجھ میں آ گیا، کسی کی باتوں میں نہیں جانا، بالکل کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں کچھ دے نہیں رہی ہے، تمہارے نام پہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ اٹھا رہی، سمجھ رہے ہو یہ ساری پالیسیز کو؟ ٹھیک ہے، جو ہے وہ تمہارا ہی ہے، اوکے؟ اور باقی جو ہے وہ میں دیکھوں گی انشاءاللہ، وہ جو سب سانگڑ کو، والی زمین تھی، ہاں ہاں وہ بھی جو ہے وہ تمہاری ہے بیٹا، اس کی ڈاکومنٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ ابھی تو تم چھوٹے ہو، بہرحال وہ اگر ہاں ہمارے ہاں نام ہو باقی ہو جاتی جائے گا سب، تم ہاں ٹینشن نہیں لو، ہاں، یہ دیکھو نا، اب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اس طرح کے سوالات کر رہے، تو یہ اپنے حق پر ہے۔ ہاں ہاں بچہ ہے تو وہ اپنا حق نہیں مانگے گا کیا؟ ہاں بالکل، یہ بات تو میں نے پہلے بھی اسے سمجھائی ہے، میں بالکل، ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا حق ہے تو اس کا حق بنتا ہے، اور ہمارے وہ حق کی تلافی ہونی چاہیے، کیونکہ اب بیٹا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ جانتا ہے، ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتا تو ہے، لیکن ہاں بیٹا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا، جو بھی تمہارا حق ہے آپ کو ملتا رہے گا، اور بالکل بہت بہت شکریہ انکل آپ کا، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہاں بالکل، ہر زمین جیسے سانگڑ والی زمین وہ بھی ملے گی، ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی تو بیٹا میں نے وہ بتا دیا تمہیں، ماشاء اچھا اللہ، ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے، ہاں میں نے بول دیا اسے کہ سانگڑ والی زمین اسی کے نام پر ہے، اس کے پیپرز میں نے وکیل صاحب سے رکھوا لیے، اب تم لوگ یہاں شو کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہے میں نے تم لوگوں کو، سب کچھ میرے بیٹے کا ہے، ٹھیک ہے، بس ماشاء اللہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ سب ان کا حق ہے، اور ان کو ہی ملنی چاہیے،
क्योंकि ये बाप का लाडला है। अब देखो ना, इसका वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ छोड़ के गया। अस्सलाम वालेकुम। बेगम कैसी हो तुम? अच्छा, मीटिंग चल रही है यहाँ पर, सबको पता है ना करना क्या है? आज का एजेंडा क्या है पता है ना? जहाद के हवाले से ये देखो, एक चीज़ लेकर आया हूँ आप सबके लिए है। फ़लस्तीन के अंदर हमने जाना है और फ़लस्तीन में मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है। मर्द और ख़वातीन दोनों हमारे साथ हों। ये देखो, ये देखो फ़लस्तीन, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में रजिस्टर है। ये हमारा टी शर्ट, ये जो हम पहन के जाएंगे, ये हमारी जो टीम होगी, जहादी टीम, जिसमें 250 से 300 लोग होंगे, ख़वातीन, मर्द हजरात, और आप लोग सब भी होंगे। ख़वातीन हमारे मिशन का एक हिस्सा है और बेगम तुमने ख़वातीन को लीड करना है। ख़वातीन दुखियारी ख़वातीन हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके घर के मर्दों को शहीद कर दिया गया है, वो ख़वातीन हमारे साथ हैं। मर्द हजरात भी हैं जिनकी फैमिलियों को डिस्टर्ब किया है, और वहाँ से फ़लस्तीन से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, और ये भी हमारे साथ हैं। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो अब बाप के साथ जहाद लड़ेगा, और मैं अपने बेटे को भी जहाद के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जहाद है तो सब कुछ है, जहाद नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान एक ब्लॉक की मानिंद है, एक दीवार की मानिंद है। अगर मुसलमान की तकलीफ महसूस नहीं की, एहसास नहीं है आप लोगों में, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान होने के लिए मुसलमान का एहसास ज़रूरी है, दर्द ज़रूरी है। इंसान में दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक एहसास और एक गैरत। गैरत पे सौदेबाजी नहीं होगी। ये गैरत ही है हमारी जो हम जमा हुए हैं, और फनियत फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, इसराइल यहूद जो जुल्म कर रहा है, आधे आधे बच्चे लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, अपनी आंखों से देख कर आया हूं मैं, उनका दर्द महसूस किया है। ये मेरा बच्चा है, ऐसे बच्चे कितने लावारिस घूम रहे हैं वहाँ पर, कितने बच्चे लावारिस घूम रहे हैं जिनके ना कोई आगे है ना पीछे। उनके वालिदैन को मार दिया गया है। उनके लिए बड़ी सपोर्ट मैं बनूंगा, उन बच्चों को जहाद की ट्रेनिंग दूंगा। वो एक एक बच्चा हज़ारों के ऊपर भारी होगा इंशाअल्लाह। आप लोग बस कमर कस लें, हमारे काफ़िले अब रवाना होने वाले हैं, जिसमें मेरी घरवाली नुमाइंदगी करेगी, मेरा बेटा होगा मेरे साथ, और मैं खुद होऊंगा। हम फ़लस्तीनियों के लिए अपना घराना पेश कर चुके हैं। अब दूसरों को देखना है वो किस हद तक आते हैं, किस हद तक जहाद का हिस्सा बनते हैं। दर्द महसूस करो उनका दर्द महसूस करो तो फिर पता चलेगा। जब तक आप दर्द महसूस नहीं करोगे कि आपके बच्चे, आपकी घरवाली, आपके घर बार, स्कूल, आपका फ्यूचर सब ख़त्म हो गया है, उनके साथ ये जुल्म हुआ है। और मैं कसम खाता हूँ, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे शहादत मिल जाए, मेरे घराने को शहादत मिल जाए, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। यहूदियों को चुन चुन के मारूंगा, यहूदों को जहाँ से शक नहीं होगा वहाँ से उन पे वार करूँगा, मैं उनकी नस्लें बर्बाद करूँगा। मैं नहीं छोड़ूंगा।
मैंने जुल्म देखा है, उस सरजमीन पे खून देखा है, बच्चों को बिलखते हुए मैंने देखा है। खाना नहीं है उनके पास, पानी नहीं है, और हम गफलत में पड़े हुए हैं। हमें महसूस करना है उनका दर्द, उनका गम महसूस करना है। खुदा के लिए एक बात याद रखना, ये दुनिया, ये जिंदगी आनी जानी दुनिया है, जिंदगी आनी जानी है। क्या मुंह दिखाएंगे हम ऊपर, क्या मुंह दिखाएंगे आका को? अगर आका ने सवाल किया कि मेरे मोमिन बंदे तुम्हारे सामने मर रहे थे, जुल्म हो रहा था उन पे, और तुम गफलत की नींद में सो रहे थे। इन हाथों से मैंने फलस्तीन के कितने शहीदों को दफनाया है, कितने बच्चों को उठाया है इन हाथों से मैंने उठाया है। और मैंने अपने रब से भी दुआ की इन हाथों से, या अल्लाह फलस्तीन पे रहम फरमा, अपना फलस्तीन पे अपना करम फरमा, फलस्तीन के साथ या अल्लाह ताला मुसलमानों को फलस्तीन का दर्द नसीब फरमा, आमीन। अब इसके ऊपर बातें नहीं होंगी, काम होगा। जहाद के लिए काफिले तैयार हो रहे हैं, उनकी कुमक, उनका खाना पीना, उनका पानी, उनके कंबल, ये सारी जिम्मेदारी हमने ली है। हम सपोर्ट करेंगे, हम इनको लेके चलेंगे। हमारे सामने 3 बॉर्डर हैं, हमारे सामने 3 बॉर्डर हैं, 2 हमारे अपने हैं, उनको भी तोड़ के जाना है, वो हमें जाने नहीं देंगे। उनको ललकार के जाना है कि हम जहाद पे जा रहे हैं, फलस्तीन निकल रहे हैं और पैदल निकल रहे हैं, लोगों की मदद के लिए निकलेंगे। दुश्मन का वो नुकसान करेंगे, दुश्मन भागने पे मजबूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, दुश्मन इतना मजबूत नहीं है जितने कि हम मजबूत हैं। हमारे पास कलमे की ताकत है, कलमे की ताकत ऐसी ताकत है कि ये जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, ये कलमे से हासिल किया गया है। इस मुल्क के लिए कोई जंगें नहीं लड़ी गई, इस मुल्क के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया, इस मुल्क को हमने कलमे के नाम पे हासिल किया है बस। और कलमे में इतनी ताकत है आपको क्या बताऊं कलमे में वो ताकत है। और ये कैब मुजाहिद की कैब है, इसको मैंने अपने हाथों से तदफीन की थी। मैंने इसकी शहीद हो गया मेरे हाथों में इसने जान दी। और इससे मैंने कसम खाई कि मैं अपने मुल्क लौट रहा हूं, लेकिन वहां से काफिले बनाकर आऊंगा। मैं आप लोगों का बदला लूंगा, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लूंगा, यहूदियों की नस्ल खत्म कर दूंगा। ये है मेरा वादा उससे। ये दुनिया बहुत छोटी है, अभी हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, अभी हम आए गए ऐसा हो जाएगा। क्यों ना एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे काम के लिए हम निकलें। क्या कहते हो आप लोग? आप चलो, आप आओ, आप बेटे आप आओ। और सबको मैं कहता हूँ सब रेडी हो जाओ, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हमने निकलना है। दुश्मन 2 साल से वार कर रहा है, दुश्मन बस करने का नाम नहीं लेता। और मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही सोचो। दुश्मन के नाखून ऐसे खींचने हैं कि जिंदा उनके नाखून खींचने हैं। उन्हें एक मर्तबा में मौत नहीं देनी, उनके लिए मौत को दूर कर दूंगा मैं। उनकी आंखें निकालेंगे, उनको ऐसा अजाब देंगे
मरेगा तो वो बाद में, लेकिन पहले हमारी सज़ा से निपटेगा वो। हमारी सज़ा, ऐसी सज़ा, ऐसा कहर होगा, और फ़लस्तीन के लिए हम हैं और फ़लस्तीन हमारे लिए है, क्योंकि हमने बेड़ा उठाया है। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो कलमे के नाम पे बना है, और मैं उस कलमे की कसम खा के कहता हूँ, मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, बल्कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। मेरा घराना फ़लस्तीन के साथ है। मेरे दोस्त अहबाब, आप लोग, आपको गुड लक कहूँगा मैं, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ मेरे साथ। देख लिया भाभी आपने? नहीं, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, आपके बेटे को लाकर उसकी सीट पर बिठा दिया। 3 अरब की जायदाद मैंने अपनी कोशिश से नाम कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था इन टाइम पे अब वो शादी कहाँ से आ जाएगी। सादिक की समझ में ये नहीं आता कि बेटियां जो होती हैं वो जनाजों की वारिस होती हैं और बेटे जो होते हैं वो जागीरों के वारिस होते हैं। देखिए आप, ये जो बात है कि बेटी बाप से बहुत करीब होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एकदम उनका फैसला चेंज होना, खुद ही उन्होंने कहा कि जायदाद आपके बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी जाए। मैंने कर दी। चलिए, आपको फायदा तो पहुंचा ना कुछ, लेकिन सीट हाथ से चली गई। मिल जाएगी। मैंने कहा ना कि बेटियां जो हैं वो जनाजों की वारिस होती हैं और बेटे जो होते हैं वो जागीरों के वारिस होते हैं। अब इसमें तो जाहिर सी बात है, ये समझ आ जाएगी अबू सादिक के, एक ना एक दिन आएगी। लेकिन इसमें एक लड़की इन्वॉल्व है, उसको मुझे बहुत शक है। अब तक मुलाकात उससे मेरी हो नहीं सकी सही तरीके से। जो सेक्रेटरी होगी। अच्छा। सुना उसकी अम्मी भी आई हुई है गाँव से। अच्छा। उससे मुलाकात करूँगा। ऐसी गेस्ट हाउस हो सकता है, मैं बुला लूँ उनको। अच्छा। लेकिन अब आपने ये करना है कि जायदाद जो आपके नाम हुई है, जो फौरी तौर पे आप सील करें। समझ नहीं रहे हैं, अगर वो मसले खड़े हो जाएंगे, उनको बताएं कि जायदाद आप बांट चुके हैं, खर्च हो गई, पैसे खत्म हो गए, इस तरह बताएं आपको। अब उनको पता चलेगा आपके अरबों की जायदाद जो मैंने नाम किया भी आपके नाम है, तो मजीद कुछ आपके नाम नहीं करेंगे। अभी आपने बिल्कुल अपना अकाउंट किसी और के नाम कर दें। बहुत आला, आप तो कमाल के निकले। आपने कैसे सोच लिया ये कि जायदाद फरोख्त कर देंगे? कैसे पॉसिबल है ये? ये उनकी सेक्रेटरी की वालदा है। वही, जैसे आपने सोच लिया कि हम फरोख्त नहीं कर सकते, ऐसे ही हमने ये सोच मेरी लिया बेटी हम है, कर लेंगे। इसका भी पूरा हक है। और कैसे हो सकता है? और आप कैसे ये बात कर सकते हो? ये भी अबू सादिक की बीवी है। ये भी अबू सादिक, आप भी अबू सादिक की बीवी है। बिल्कुल। और मेरी बेटी का भी उतना ही हक है जितना इनके बेटे का है। हाँ, ठीक है भाभी, भाभी, भाभी। दो भाभी। बिल्कुल। 2 तो क्या 3 दिन भी हो सकती है। नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस तो देखिए है, कॉन्फिडेंस है। क्या सबूत है आपके पास कि ये अबू सादिक की बेटी है? ये तो कौन पेश करेगा? सारे सबूत इधर इधर देख के बात करो। देखिए बात भाभी, समझा। मैं तो वकील हूँ जी उनका, मैं तो हमेशा इंसाफ की बात करूंगा। अगर आप जी, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट ठीक है, मेरे पास भी है। मैं कोर्ट में ही आपसे बात करूंगा। नहीं मैं लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि जो है ये सेल कर दे प्रॉपर्टी? कैसे कर सकते हैं? मैं उनको बता रहा था भाई, वो इसका वो प्रॉपर्टी की मालिक है, वो खुद करना चाह रहे थे। मेरे पास एक दो क्लाइंट तो थे। प्रॉपर्टी की मालिक, सॉरी टू से, मेरी बेटी भी है। लेकिन फिलहाल वो जायदाद इनके नाम की है। मेरी बेटी के नाम की है, शायद आपको ये पता We नहीं। don't care. शो, पेपर शो करें? जी बिल्कुल करेंगे हम लोग, जी। लेकिन हम लोग कोर्ट में करेंगे। हम ऐसे अरे गहरे को किसी को नहीं देंगे। जी, कौन है? मैं इनका 21 साल पुराना वकील हूँ। कौन है? आई नो होंगे आप, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो छोड़ो। क्या गलत कह रही है? वकील हूँ। वो आ गए। हैदर अली को Yes, sir. पता चल जाएगा नत्थू खेरा कौन है? नत्थू खेरा तू है। मैं बतूर मैडम आई है। आइए मैडम।
मैडम अबू उबैदा को आप याद आए जब ये बेटी छोटी छोड़ के साइमा सेक्रेटरी थी उसकी, ये जिंदगी बनी थी, इनके नाम तो पता ही नहीं था कब क्या है कब क्या है। वो तो जहाँ जाता था कोई ना कोई आदमी छोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या करते हो साथ में? कहता है फिर अबू उबैदा जाता है तो एक तरस करता है कुछ भी नहीं है तेरे पास कुछ। तो वो कहता है मैं मन चाहता हूँ, कहता तो कुछ तो डरता है। मैंने एक दिन कहा उसको मैं सादिक हूँ सादिक। तो वो कहता है तो मैं सादिक को हर चीज मेरे हाथ फलस्तीन हो वो बेटा और अब सादिक करने की मिला। अब वो बेटा उधर चला गया, आमामन की आवाज बन के वापस आया। अबू सादिक ने मना किया कि नहीं तुम वापस जाओगे, मेरी जिंदगी मेरे अपनों ने गद्दारी की, तुम मेरी बेटी को बचाओ। उस बेटी को इसका किसी को पता नहीं। दौलत तो मिल जाएगी लेकिन वकील की खबर रखना, फ्रॉड की खबर रखना और अपने नाम की खबर रखना, किसी को बताना। जब यहाँ मैं पहुंचा तो हर तरह वो सादिक की बात चल रही, हर तरफ लोग परेशान थे, सादिक के इंतजार में थे। मैं जागीर उसकी देख के हैरान रह गया। हैदर अली ने सोचा हैदर अली के हाथ में एक चीज एक हुक्का दिया, एक बात कही कि तुम जाओगे तुम्हें मेरी बेटी पहचान गई, अबू लोग समझेंगे अबू सादिक सादिक में हूँ क्योंकि सादिक में मीर हूँ, उसका रखवाला हूँ, उसका अबू नहीं, उसका सादिक और अमीन हूँ मैं, मेरी दौलत नहीं। मैंने उसको कहा था मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम जो चाहते थे मन का कराओ। मुझे पता था हमारे लोग मुझे नहीं चाहते, मुझे चाहते तो गद्दारी। ये खबर सिर्फ मुझे थी क्या वो सादिक को, लेकिन अबू सादिक की खबर थी किसी मेरे मोबाइल और मेरी चीजों को किसी। मुझे बहुत अफसोस है, फलस्तीन को बचा दी। हैदर अली ने कहा था जहाज नहीं, एक जंग हो। सादिक ने कहा नहीं, हैदर अली हम अमन चाहते, हमारे नबी ने अमन किया। हम अगर जंग चाहेंगे तो लोग बोलेंगे हम लड़ने वाले, हम मोहम्मद के नाम पे बनने वाले, हम अमन करने वाले। हैदर अली कुछ नहीं, हैदर अली बारूद की ढेर में ये तेरी मेरे हाथ में एक ही आवाज थी, तू भाग, सादिक को बुझने दे। आज के बाद सादिक भी और मेरे बच्चों का तूने फैसला करना है और तुम्हें